Hello student, welcome back to physics class. Today lecture number 13, chapter number 4, laws of motion. Yesterday we discussed about the type of collision, elastic collision, inelastic collision and perfectly inelastic collision. Elastic collision में हमने क्या देखा कि total momentum before and after are equal conserved, whereas kinetic energy before and after collision are equal. But in case of inelastic collision, only the total momentum is conserved but not the kinetic energy. दिस इज़ द मेन की वो पॉइंट्स फॉर दिस टाइप ऑफ कोलिजन. तो आज हम डिराइव करने वाले कि इफ़ देर इज हेड ऑन कोलिजन मतलब दी टू बॉडीज आर कोलाइडिंग विच इज अदर इन वन डायमेंशन, एक ही डायमेंशन में, वन लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोलिजन हो रहा है, ओके, ये M1 है, M2 है, दोनों मूव हो रहा है, राइट, एंड दिस बॉडी विल कोलाइड विद दिस, राइट, और एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कोलिजन. अभी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में, वन डायमेंशन. सो दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज विल बी द हेड ऑन कोलिजन, right, one dimension. So let's derive the formula for the coefficient of restitution as well as final velocity. तो पहले हम देखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन की जो कंडीशन है, द कंडीशन फॉर इलास्टिक कोलिजन इज द कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन E is equal to 1, or we can say this can be written as velocity of separation डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2. तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो 1 आएगा, मतलब बोथ आर इक्वल. जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रहेगा. तो वही हमको डिराइव करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो पहले सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे. टू पार्टिकल्स अंडरगो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन शो दैट देयर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू देयर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो पहले हम इसका डायग्राम इमेजिन करेंगे. सी बच्चों, द डायग्राम विल बी लाइक दिस. इनिशियली आई एम टेकिंग टू बॉडीज. लेट द बॉडी 1 हैविंग अ मास m1 which is moving with the velocity, initial velocity u1 bar. Here we are going to consider the magnitude only, okay, when because it is one dimension, there is no any change. And the second body will move like this. This is m2 which is moving with the velocity u2, right. So this is before collision. Now when they meet together, जब अभी यहाँ पे अभी ये कंडीशन क्या है, ये है, then they will move and collide at this point. So this is the during collision. This is the time of impact. And after colliding, they will separate and they will again start to move. Okay. So let's draw the second diagram. In the during collision, they will stick together for the moment. थोड़ी देर के लिए वो एक दूसरे को टकराएंगे. So this is M1, this is M2. Right, so the force acting on this will be F12 by, यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड बॉडी विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन 2 by 1. जो न्यूमेरल सबसे पहले आता है 1 आता है, F12. इसका मतलब क्या होता है कि मास 1 पे फोर्स एक्टर्स हो रहा है, और सेकेंड नंबर क्या है 2. तो इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन 1, 2. Here who is exerting force on 2 by 1, F21. So and both the forces are equal in magnitude but opposite in direction by using Newton's third law. Got it? So this is during collision. अभी जो थर्ड केस होगी, थर्ड केस में क्या होगा, I have to draw another diagram. In the third case, body will move with, this is moving with the final velocity v1, and this body will move m2 which is moving with the final velocity v2. So this is the type of head on elastic collision. ये आपको याद रखना है. What is the first condition? हमारा पहला कंडीशन क्या है इलास्टिक कोलिजन का, मोमेंटम. तो what is the momentum before collision, right? So total momentum by using, यहाँ पे लिखेंगे पहले
कंसिडर, फिर ये स्टार्टिंग में लिखने हो, कंसिडर द पार्टिकल हैविंग मास m1 एंड m2 मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 आफ्टर कोलिजन दे विल मूव विद द वेलोसिटी v1 एंड वो सब लिखना है स्टार्टिंग में, वो मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला, आई एम गोइंग टू राइट ओनली द मैथमेटिकल पार्ट, ओके। लेकिन जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको एग्जाम में लिखना है, इतना याद रखना है, ओके। सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय यूजिंग लॉ ऑफ conservation of momentum, conservation of momentum, conservation of momentum, what we can write, the total initial momentum, तो m1 u1 plus m2 u2 which is equal to the total momentum after collision, that will be m1 v1 plus m2 v2, okay। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल ब्रिंग द जो इनिशियल जो मास वन है वो मास वन का टर्म साथ में लाएंगे, वी विल ब्रिंग द मास वन टर्म टुगेदर, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज m1 u1 माइनस m1 v1 विच इज इक्वल टू, अभी ये टर्म राइट साइड में चला जाएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज m2 v2, ये बन जाएगा माइनस m2 u2, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे फॉर द टाइमिंग, विल गिव दिस इक्वेशन 1, ओके। सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक, ये पहला कंडीशन हुआ, ये पहला जो कंडीशन है दैट इज फॉर इलास्टिक एज वेल एज इन इलास्टिक, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दिस फर्स्ट कंडीशन इज एप्लीकेबल टू बोथ द टाइप ऑफ कोलिजन, राइट। अभी दूसरा जो कंडीशन है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द इलास्टिक कोलिजन, दैट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी before collision exactly equal to the sum of the total kinetic energy after collision, okay। So the total kinetic energy, second condition as per the second condition for elastic collision, okay, what is the second condition, that is total kinetic energy before collision which is equal to total kinetic energy after collision, okay। Now how can we write the expression for total kinetic energy before collision? Now what is the kinetic energy of this mass m1 u1 square plus m2 u2 square, this is the total kinetic energy before collision, m1 u1 square, it will be 1/2, sorry, it is 1/2, half m square, so half m1 u1 square plus half second mass with second initial velocity which is equal to 1/2 final kinetic energy v1 square plus 1/2 m2 v2 square, बराबर। अभी देखो बच्चों यहाँ पे जो हाफ है वो कट हो जाएगा, ऑल ऑफ फ्रॉम बोथ द साइड्स हाफ विल कट, तो व्हाट इज लेफ्ट, बचा क्या, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। अभी ये इक्वेशन में हमने क्या किया था यहाँ पे, व्हाट वी हैव डन हियर, हमने जो मास वन है उसका जो वेलोसिटी जो मोमेंटम है वो पास में लाया, वैसे यहाँ पे भी जो मास वन का टर्म्स है ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ओके। सो इट कैन बी रिटन एज m1 u1 स्क्वायर माइनस, अभी ये v1 स्क्वायर लेफ्ट में आ जाएगा, तो इट कैन बी रिटन एज m1 v1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। फाइन, अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, m1 को कॉमन निकालेंगे, so this can be written as m1 into bracket u1 square minus v1 square which is equal to, okay, m2 यहाँ पे कॉमन निकलेगा, m2 into bracket v2 square minus u2 square, फाइन। सो अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने का, सो दिस कैन बी रिटन एज m1 into bracket u1 plus v1 into u1 minus v1 which is equal to m2 into bracket v2 plus u2 in the second bracket
v2 प्लस u2। ओके, तो हम इसको इक्वेशन नंबर देंगे 2 दे देंगे इसको। वी विल गिव द इक्वेशन नंबर, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर, कहाँ गया कॉमन वाला, यहाँ पे और एक निकलेगा, यहाँ पे एक कॉमन निकलेगा। तो m1 इंटू ब्रैकेट u1 माइनस v1 विच इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, ये होगा इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 होगा। राइट, अभी देखो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन 3/2 करना पड़ेगा। इक्वेशन जो 3 है इसको 2 से डिवाइड करना है। ओके, डिवाइडिंग 3/2 वी गेट, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2 वी गेट क्या मिलेगा, जस्ट डिवाइड करते m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 डिवाइड बाय m1 u1 माइनस v1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा m2 इंटू ब्रैकेट v2 प्लस u2 v2 माइनस आएगा यहाँ पे माइनस v2 माइनस u2 डिवाइड बाय m2 v2 माइनस u2। ओके फाइन, मैंने क्या किया यहाँ पे इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, m1 कट हो जाएगा, u1 माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पे m2 कट हो जाएगा और v2 और e2 ये भी कट। तो क्या बचेगा, सिर्फ एडिशनल टर्म बचेगा। सो द टर्म रिमेनिंग इज u1 प्लस v1 विच इज इक्वल टू v2 प्लस u2। फाइन, अभी क्या करेंगे यहाँ पे, जो ये टर्म इधर आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी है वो पास में लाने का, इसको इक्वेशन नंबर कुछ दे देंगे बिकॉज ये हमको लगने वाला है आगे के इक्वेशन में, वी विल रिक्वायर दिस। ओके, तो इक्वेशन नंबर इसको देंगे u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे u1 माइनस ये u2 इधर आ जाएगा, u2 विच इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये इधर आ गया, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। राइट, सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन 5। सो हियर व्हाट इज दिस u1 माइनस u2, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। राइट, बोथ आर इक्वल, वही हमको प्रूव करना है एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। सो दिस कैन बी रिटन एज हियर द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच is equal to velocity of separation। शायद यही हमको प्रूव करना है। सी, शो दैट देयर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आ गया, पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। ओके, नाउ इफ इन केस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है, द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एंड वो हमको 1 दिखाना है। So just take a screenshot for this। Okay, so hence in head-on collision, head-on collision मतलब one dimension collision, head-on elastic collision, what we from equation 5 we can write, okay, v2 minus v1 upon u1 minus u2 which is equal to 1। okay, लेकिन ये जो है ये क्या है, this is the coefficient of restitution, okay, that is the velocity of separation to the velocity of approach। ओके, अभी हमको डिराइव करना है फाइंड फाइनल वेलोसिटीज इन टर्म्स ऑफ देयर मासेस एंड इनिशियल वेलोसिटीज। सो नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर, गिव द टाइटल एक्सप्रेशन फॉर। अभी ये क्वेश्चन का एंड हो गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वो एडिशनल दे सकते कि आफ्टर फाइंडिंग दिस
you have to obtain the expression for final velocity in terms of their masses m1 m2 and in terms of their initial velocity u1 and u2. Okay, so give the title expression for final velocities in terms of their masses that is m1 and m2, m1 m2 आना चाहिए उसमें, and initial velocities that is u1 and u2. Fine. So from equation 4, okay, or recall equation 4 can be rewrite equation 4 u1 plus v1 which is equal to v2 plus u2. अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल राइट मेड द इक्वेशन फॉर v2. पहले v2 का हम पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन विल गेट वैल्यू ऑफ v1. सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट v2 इज इक्वल टू, v2 क्या लिख सकते हैं, v2 कैन बी रिटन एज u1 प्लस v1 माइनस u2. ये u2 इधर आ जाएगा. ओके, इसको इक्वेशन नंबर 6 कुछ दे देंगे. राइट, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 1, जो हमारा पहला इक्वेशन था स्टार्टिंग का, वो याद करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 1 वी गेट. अभी इक्वेशन 1 को थोड़ा रीराइट करेंगे, वापस एक बार लिखेंगे कि इक्वेशन 1 क्या है. द इक्वेशन 1 इज सम ऑफ द मोमेंटम u1 प्लस m2 u2 विच इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. फाइन. अभी ये इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो v2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ v1. So let us substitute value of v2, m1 u1 plus m2 u2 which is equal to m1 v1 plus m2 into bracket, m2 का वैल्यू v2 का वैल्यू डालेंगे, that is u1 plus v1 minus u2. I have substitute value in this equation. Okay, अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. धीरे धीरे जाना है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, समझ में आया. तो आराम से इसको एग्ज़ाम के पहले 3-4 बार राइटिंग प्रैक्टिस करने की, 2-3 बार 1-2 बार देख के लिखने का, उसके बाद बिना देखे लिखने का, अपने आप याद हो जाएगा. इसमें स्टेप्स याद रखने आपको, और कुछ नहीं कंसेप्ट. सो m1 u1 प्लस m2 u2 विच इज इक्वल टू m1 v1 प्लस, अब ये मल्टीप्लाइड होगा, दिस कैन बी रिटन एज m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2. बराबर. अभी कई बार बच्चों को थोड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या करें अभी, आगे जहाँ तक तो आ गया, आगे क्या करने का. हमारा मकसद क्या यहाँ पे, आवर एम इज टू फाइंड द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1, v1 निकालना है. यहाँ पे v1 निकालना है, हमारा मकसद क्या है, v1 निकालना है. तो अगर v1 निकालना है तो v1 का टर्म उधर ही रखेंगे. वी विल जस्ट शिफ्ट द अदर टर्म्स, जो बाकी के टर्म्स है वो लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे. राइट, एंड उसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो लेट अस ट्रांसफर दिस. अभी ये और ये दोनों इधर आ जाएंगे. सो सी m1 u1 प्लस m2 u2, अभी ये जो टर्म है m2 u1 तो इधर लगेंगे तो माइनस हो जाएगा m2 u1 बराबर, ये a प्लस है, सॉरी ये माइनस है, इधर लेफ्ट में आके प्लस हो जाएगा. तो it can be written as m2 u2 which is equal to m1 v1 plus m2 v1. आ गया. फाइन. देखो यहाँ पे v1 पास में आ गया. अभी यहाँ पे v1 को कॉमन निकालने का,
राइट। ब्रैकेट के अंदर का आएगा फिर m1 प्लस m2। इधर देखते हैं कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या, रिड्यूस इनटू लोवेस्ट टर्म, या u1 को पास में लाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u1 को कॉमन निकालेंगे, तो ये और ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो दिस कैन बी रिटन एज m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस यहाँ पे u2 कॉमन निकाला, 2 बार आ गया हो, दिस इज 2 टाइम्स m2 u2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे v1 को कॉमन निकल गया m1 प्लस m2 इंटू v1। बराबर बच्चों, यहाँ तो कोई अड़चन नहीं, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं। अभी हमको मेक v1 एज अ सब्जेक्ट, तो ये जो टर्म है ये इधर आ जाएगी। तो फॉर माई कन्वीनियंस आई एम राइटिंग दिस स्टेप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ओके, LHS को लिखूंगा। सो v1 into bracket m1 plus m2 which is equal to m1 minus m2 into u1 plus 2m2 u2, ओके। अभी मैं ये वाला टर्म इधर लेके आऊँगा, सो v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ये u1 यहाँ पे आएगा u1 प्लस 2 टाइम्स सेकेंड मास ऑफ सेकेंड बॉडी अपॉन द टोटल मास m1 प्लस m2 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय u2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 1। जो पहला पार्टिकल है, पहला पार्टिकल का जो फाइनल वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन हमको मिल गया है, ओके। चेक कर लेते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, करेक्ट, 2m2 अपॉन m2 into, राइट। अभी नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर v2। अगर अभी v2 फाइंड करना है तो क्या करने का, जो पहला इक्वेशन था, ये इक्वेशन यहाँ पे v1 का फॉर्मूला बनाना है, और जो v1 आएगा वो इक्वेशन 1 में डालेंगे, राइट। सो नाउ फॉर द फाइनल वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी of mass 2, okay। So from equation 1 से हम क्या लिख सकते हैं, 1 ये हमने यहाँ पे लिखा है, v1 इज इक्वल टू क्या आएगा, v2 प्लस u2 माइनस u1, फाइन। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कौन सा था वो, ये वाला इक्वेशन सबमिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अभी v1 का है, पुटिंग वैल्यू ऑफ, ये सॉरी इक्वेशन 4 है, दिस इज इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v1 in equation 1 we get, ये इक्वेशन में डालना है, ओके। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रब आउट द टॉप पार्ट, ओके। सो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे इक्वेशन, ये इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में वी कैन राइट m1 u1 प्लस m2 u2 विच इज इक्वल टू m1 इंटू ब्रैकेट, v1 का वैल्यू डालेंगे, v1 क्या है, v2 प्लस u2 माइनस u1 राइट, प्लस u2, ओके। m1 v1 कहा गया है, ये वाला m1 v1 डाला प्लस m2 v2 प्लस m2 v2। इंश्योर दैट कि देयर इज नो एनी v1 टर्म, इंश्योर करो कि वहाँ पे कोई v1 वाला टर्म नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, v1 वाला टर्म सब्स्टिट्यूट किया है। तो कोई भी गलती से u1 को v1 मत बनाओ, नहीं तो बाद में यहाँ पे कोई रट्टा मारने का नहीं, नो नीड ऑफ रट्टोफाइंग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दी स्टेप्स एंड कॉन्सेप्ट कि कैसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, ओके। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस, इसको सॉल्व करते हैं।
So this can be written as m1 u1 plus m2 u2 which is equal to, अभी मल्टीप्लाई करेंगे, so this can be written as m1 v2 plus m1 u2 minus m1 u1 plus m2 v2, बराबर। अगेन वापस वही कंसेप्ट कि हमारा मकसद क्या है कि v2 निकालना है, तो v2 निकालना है तो ये जो v2 का टर्म है दोनों को यहीं पे रखेंगे, ओके, ताकि हम कॉमन निकाल सकें। और जो अपार्ट फ्रॉम v2 है, v2 को छोड़ के जो बाकी के जो टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस, अभी एक याद रखना है, जब भी आप राइट साइड के टर्म्स लेफ्ट साइड में लेके जाते हो, बीच में इक्वल टू साइन है, मैथ्स के रूल के हिसाब से वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है इधर आके माइनस करने का, अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर आके प्लस होगा। दैट केयर टू बी टेकन वाइल डिराइविंग दिस एक्सप्रेशन, ओके बच्चों। सो ये है प्लस, इधर आके माइनस हो जाएगा, m1 u2, ये प्लस है इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। So m1 u1 which is equal to m1 v2 plus m2 u2, सॉरी यहाँ पे v2 है। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। सो m1 u1 यहाँ पे दो बार आ गया, तो 2 टाइम्स m1 u1, अभी यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे u2 कॉमन निकलेगा, प्लस m2 माइनस m1 इंटू u2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय v2, वेरी सिंपल। तो अभी यहाँ पे हमारा क्या करना है, v2 को सब्जेक्ट बनाना है, वी हैव टू मेक द फॉर्मूला फॉर v2। तो यहाँ पे v2 में ये टर्म थोड़ा सा रिवर्स ले ले, तो v2 मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ट्वाइस m1 u1, ओके, प्लस m2 माइनस m1 मल्टीप्लाइड बाय u2, ओके। सो मेक v2 एज अ सब्जेक्ट, ये टर्म इधर आ जाएगी अभी। सो दिस कैन बी रिटन एज v2 इज इक्वल टू ट्वाइस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u2। ये जो u1 है ना, इसको ब्रैकेट में डालने का और यहाँ पे u1 लेने का, इसको ब्रैकेट में डालने का मासेस को और यहाँ पे u2 डालने का, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन टर्म्स ऑफ देयर मासेस एंड देयर इनिशियल वेलोसिटी फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे v1 और v2 हमको मिल गया है, राइट। वी गॉट द एक्सप्रेशन फॉर दी v1 एंड v2 इज इक्वल ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस m1, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वी आर राइट, ओके। तो कोई गलती नहीं होगी अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो, ओके। तो अभी ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी, लेकिन अभी इसका डिफरेंट केसेस है, अलग अलग केसेस है कि अगर मास इक्वल है, दोनों बॉडीज जो कोलाइडिंग बॉडी उसका मास इक्वल है, या एक बॉडी रेस्ट पे दूसरी बॉडी मोशन में है, राइट, या एक बॉडी लार्ज है मैसिव है तो दूसरी बॉडी स्मॉल है, तो तब फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा वो अभी हमको डिराइव करना है। और दिस जो डेरिवेशन है ये, दिस डेरिवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल फॉर CET और JEE एडवांस और JEE मेन के लिए भी ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, 11 के सब टॉपिक्स JEE एडवांस और JEE मेन के कंपेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अगर सब कॉन्सेप्ट 11 में क्लियर हो गए तो आपको 12th में कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, नो एनी डिफ़िकल्टी इन 12th स्टैंडर्ड इफ़ यू आर डन दी 11th स्टैंडर्ड सीरियसली। अगर आपने 11 सीरियसली किया तो 12th में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ओके फाइन, चलो अभी डिफरेंट केसेस देखते हैं। अभी ये जो फाइनल वेलोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने डिराइव किया, क्या क्या किया हमने पहले? सबसे पहले हमने क्या किया? मोमेंटम।
पहला कंडीशन इलास्टिक कोलिजन, जो मोमेंटम है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दोनों को इक्वल किया। उसके बाद क्या किया, वी हैव टेकन द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। दोनों काइनेटिक एनर्जी मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती है। अंडरस्टूड? ओके। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। ओके, सो डिफरेंट केसेस अभी ये दोनों फॉर्मूला हमको लगने वाला है, V1 का फॉर्मूला और V2 का फॉर्मूला दोनों लगने वाला है, तो वी आर नॉट गोइंग टू रब दैट फॉर्मूला। डिफरेंट केसेस, सपोज फर्स्ट केस, इफ M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M। मान लो कि हमने शुरू में दोनों का मास सेम लिया, तो अभी V1 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे V1 अगर फाइंड करना है व्हेन द मासेस आर इक्वल, राइट, एंड यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि U1 ग्रेटर दैन U2, तभी कोलिजन होगा। ये तो कंडीशन होगा ही होगा कि U1 ग्रेटर दैन U2, देन ओनली देयर इज अ कोलिजन पॉसिबल। अभी यहाँ पे सब क्यों, दोनों को अगर मास इक्वल किया तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस 2m, so this can be written as 0 upon 2m into U1 plus 2m upon 2m multiplied by U2। तो क्या आएगा यहाँ पे, ये कट हो जाएगा, सो सिंपली U2। मतलब we can write, this implies that V1 final velocity of the first body will be same as that of the initial velocity of second body। बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो, अब मैं डेमो दिखा दूँ आपको, ये दो बॉडीज है, दोनों का मास अगर मान सेम लिया, भाई मेरे पास इक्वल बॉल साइज का बॉल नहीं है, बट विल कंसिडर दी बोथ द बॉल्स हैविंग सेम मास एंड दे आर कोलाइडिंग, राइट। तो कोलिजन के बाद क्या होगा कि इसका जो वेलोसिटी, इसका फाइनल वेलोसिटी विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस। ये अगर ये पहले कितना था इसका 10 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड कितना 7 मीटर पर सेकेंड, बराबर। तो ये 10 से चल रहा था इनिशियल और ये 7 से चल रहा है। जब इसको टकराएगा तो क्या होगा कि इसका जो वेलोसिटी था इनिशियल वेलोसिटी U2 7 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसको मिलेगा, मतलब ये स्लो हो जाएगा, ये फास्ट चलेगा, इट विल मूव फास्टर, वो आगे जाएगा। लेकिन इसका जो V1 है, दैट V1 विल बी दी फाइनल वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टू बॉडी। समझ में आ रहा है? इसका 7 था पहले, इसका 10 था। कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये 7 हो जाएगा, ये आगे दौड़ेगा। दिस वे कब पॉसिबल है, अगर दोनों का मास सेम है तो, राइट। सो दिस इंडिकेट, अब इसका कंक्लूजन लिख लेते व्हाट वी कैन राइट अ कंक्लूजन। ओके, सो इन दिस फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास और बॉडी वन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 V1। अभी V2 निकालना हमको, लेट अस फाइंड एक्सप्रेशन फॉर V2। अभी V2 निकालेंगे, V2 इज इक्वल टू, V2 क्या आएगा, अभी मास सेम है ना, तो 2m अपॉन 2m, तो ये क्या आएगा 2m अपॉन 2m मल्टीप्लाइड बाय क्या है यहाँ पे U1 प्लस ये M2 माइनस M1, दोनों का मास सेम है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दिस टर्म विल बिकम जीरो, तो क्या बचेगा 2m to m कट विच इज U1। तो यहाँ पे क्या होगा V2 इज इक्वल टू U1, मतलब द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी विल एक्वायर्ड बाय द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट। देखो यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस केस हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, बोथ द बॉडी एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, राइट। इफ द मासेस, बोथ द बॉडी आर इक्वल मासेस, दोनों का अगर इक्वल मास है, दोनों टकरा रहे, तो क्या होगा, वो आपस में क्या करेंगे, अपनी अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल
मान लो ये जो बॉल है, दोनों का मास यहाँ पे सेम कंसिडर करना है, राइट। फॉर द मोमेंट कंसिडर द मास ऑफ दिस बोथ द बॉल इज सेम, वो हमको एज्यूम करना है। तो रेड और वाइट है, राइट। तो जब ये m1 है और ये m2 है, दोनों m ही है, मतलब इसका वेलोसिटी u1, इसका u2। कोलिजन के बाद क्या होगा कि दिस बॉल विल एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ दिस एंड दिस बॉल विल एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ दिस। पहले ये 10 था, ये 7 था, कोलिजन के बाद क्या होगा, ये 10 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, राइट। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस CET में पूछे जा सकते हैं, तो आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन प्रॉपरली विद डेमोन्स्ट्रेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। चलो अभी अगला कंडीशन देखेंगे, ये इसको ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, वापस लिखेंगे उसको। राइट एक्सप्रेशन अगेन, राइट एक्सप्रेशन फॉर V2 here। This will be m2 minus m1 upon m1 plus m2, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, this will be u1 was that v2 this is u1 plus this will be u2, sorry, ये u2 आएगा and this will be 2m1 upon m1 plus m2 multiplied by u1, okay। so these are the formula। तो ये दोनों फार्मूला हमको लगने वाले हैं सभी केसेस पे, तो इसको साइड में लिख लेते हैं, वो बेटर रहेगा, राइट। अभी नेक्स्ट केस जो है, द नेक्स्ट पॉसिबल केस इज सेकंड केस, इफ द पार्टिकल 2 बॉडी 2 इज एट रेस्ट। सेकंड केस, इफ particle 2 is at rest, ओके। मास सेम है, तो यहाँ पे u2 जीरो लेंगे। also m1 is equal to m2 is equal to small m। this is the second case। अभी let us find expression for v1 when the body 2 is at rest। okay, so let's find expression v1। v1 is equal to, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 टाइम्स u1 प्लस 2m अपॉन 2m, 2m अपॉन 2m, u2 मतलब सेकेंड बॉडी अल्सो 0, तो v1 क्या हो जाएगा, 0, 0 प्लस 0 v1, मतलब फर्स्ट बॉडी विल स्टॉप। अभी देखो यहाँ पे कैसे होगा, ये सेकेंड बॉडी और ये पहला बॉडी, ये रेस्ट पे था, मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ, आई एम टेकिंग दिस एट रेस्ट, और ये पहला बॉडी, फर्स्ट पार्टिकल और फर्स्ट बॉडी, व्हेन दिस कोलाइड, जब इसको कोलाइड होगा, और ये वन डायमेंशन में, राइट, जब कोलाइड होगा तो क्या होगा, ये रुक जाएगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी पहले u1 था, कोलिजन के बाद ये रुक जाएगा और ये आगे चलेगा, इट विल गो अहेड, बट दिस विल स्टॉप, मतलब द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1, लुक एट मी, सब लोग इधर ध्यान दो, राइट। तो यहाँ पे रेड बॉल जो है वो पहला बॉडी है, वो क्या करेगा, जब इसको टकराएगा तो ये रुक जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा, तो मतलब इसका रेड बॉल का फाइनल वेलोसिटी 0, रेड बॉल का फाइनल वेलोसिटी 0। अभी देखते हैं v2 क्या होगा, v2 निकालना है, लेट अस, व्हाट यू थिंक अबाउट, चलो सोचो मन में कि v2 क्या होगा, अगर पहला बॉडी रुक गया दूसरे बॉडी को टकरा गई तो सेकेंड बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वो फाइंड करना भी। सो लेट्स फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर v2, देन v2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या होगा, दोनों का मास सेम है,
दोनों बॉडी का, तो जीरो हो जाएगा ये। तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय u2, ओके, ये ऑलरेडी जीरो है, जीरो इंटू जीरो जीरो आएगा, प्लस क्योंकि सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, तो ये टू जीरो है। अब यहाँ पे क्या आएगा 2m अपॉन 2m दोनों का इंटू u1 इंटू u1। सो दिस इम्प्लाइज ये 1 हो जाएगा, तो v2 इज इक्वल टू u1, राइट। मतलब व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी, पहला बॉडी का जो वेलोसिटी था, मान लो द सेकेंड बॉडी विच इज एट रेस्ट, ये सेकेंड बॉडी और ये द फर्स्ट बॉडी, राइट, रेड बॉल, तो ये इसका वेलोसिटी कितना था, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, और ये रेस्ट पे। तो व्हेन दिस बॉडी वाज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, हेड ऑन कोलिजन, ये जो कोलिजन है ये हेड ऑन कोलिजन, तो ये इसका वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकेंड। जब इसके साथ टकराएगा तो ये रुक जाएगा, मतलब v1 जीरो हो जाएगा, तो v1 जीरो हो गया। और व्हाट अबाउट दिस सेकेंड बॉडी v2, द v2 विल बी एक्वायर्ड द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट। अभी इसको 10 मिल जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? सो दिस इज व्हाट, सो सिंपल। आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो एग्जाम के टाइम पे अगर आपको टैली करना है तो। देन इन द थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस देखेंगे अभी। विल इफ द पार्टिकल वन इज मैसिव, पहला पार्टिकल ज़्यादा हीवी है, इफ m1 वेरी ग्रेटर दैन m2, ओके, heavy, and particle 2 at rest, okay, and particle 2 at rest u2 equal to 0, u2 is equal to 0। अभी v1 निकालेंगे, ओके, लेट्स फाइंड अ फाइनल वेलोसिटी। सो v1 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे m1 ज़्यादा है तो m2 निग्लिजिबल है, सेकंड मास जो है निग्लिजिबल है, लेकिन वो रेस्ट पे ये निग्लिजिबल है। सो दिस कैन बी रिटन एज m1 अपॉन m1, बट दोनों m है, राइट, दोनों नहीं, सॉरी, ये ज़्यादा है, नॉट इक्वल, मास इज नॉट इक्वल। सो दिस इज m1, दिस इज m1 इंटू u1 प्लस ये क्या आएगा, यहाँ पे m2 स्मॉल है और विच इज एट रेस्ट, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो जीरो आ जाएगा, दिस विल बी जीरो। तो क्या आएगा बच्चों, ये कट हो जाएगा, विच इज u1। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1 विल बी द सेम एज दैट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, विल बी द सेम एज दैट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, ओके। अभी v2 निकालेंगे, v2 इज इक्वल टू, v2 निकालेंगे, v2 क्या आएगा, v2 विल बी, ये m2 स्मॉल है, माइनस m1 अपॉन यहाँ पे m1 इंटू u2, लेकिन u2 जीरो है, सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, तो ये जीरो हो जाएगा, इंटू जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस 2m1 अपॉन यहाँ पे m1 इंटू u1, okay। So when this is possible, so this will be, ये टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस m1 कट 2 times u1। So what will the final velocity of the body 2 which is smaller, जो छोटी है, सेकेंड बॉडी स्मॉल है, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, डेफिनेटली जब अभी देखो यहाँ पे, राइट, m1 इज लार्जर दैन m2 छोटा है, m1 बड़ा है, राइट, और ये रेस्ट पे, दिस बॉडी है, दिस सेकेंड बॉडी विच इज एट रेस्ट, यहाँ पे मैं रेस्ट पे रखा और ये इसको टकराएगा, ये वाला m1, राइट। अगर इसका वेलोसिटी 10 है, वो इसको टकराएगा, टकराने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v1, दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ u1। तो इसका जो वेलोसिटी वो वही रहेगा, जो इसका इनिशियल था वही रहेगा, लेकिन ये जो सेकेंड बॉडी जो रेस्ट पे था वो इसके डबल स्पीड से घूमेगा, डबल स्पीड से मूव होगा। दिस सेकेंड बॉडी विल मूव डबल द स्पीड ऑफ द बॉडी 1, दैट इज u1, 2 times u1, okay।
सो यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? यू कैन कंक्लूड दैट फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे लिख लेते, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी वन और पार्टिकल वन will be same as that of its initial velocity, initial speed or initial velocity, that is u1. Then final velocity of particle 2 which was at the rest, जो रेस्ट पे था, वो कितने स्पीड पे मूव होगा? डबल द स्पीड ऑफ फर्स्ट वन. ओके, विल मूव एट द स्पीड डबल द स्पीड ऑफ पार्टिकल वन. दिस इज व्हाट वी कैन राइट द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. ओके, अभी अगला जो है, the next is with the red marker. Okay. Now we will see the case 4. Case 4 क्या है? If the second particle is massive, if second particle is massive, that is m1 is very less than m2, and which is at rest, second body which is at rest, वो रेस्ट पे, it does not move. क्या होगा? अगर मान लो मैंने दीवार को मैंने सेकेंड बॉडी लिया विच इज एट रेस्ट और बहुत हेवी है, राइट, और इफ आई एम ट्राइंग टू मूव दिस वे, ओके, ये मेरा पाथ है और ये बॉल जा रहा है, राइट, कैन यू सी स्टूडेंट? यस. तो अगर ये दीवार है, ये m2 है और विच इज एट रेस्ट, u2 इज 0 एंड दिस इज बॉडी 1, when it is moving, what happen? Return back, bouncing back with the same speed, okay. जैसे मान लो if I am striking like this, this ball is colliding, right? तो m1 which is moving with the velocity u1 and this is at rest u2 0, लेकिन massive है, m2 is bigger or larger or heavier than this m1. तो जब ये इसको कोलाइड होगा, टकराएगा, बट इट इज इलास्टिक कोलिजन, राइट. तो इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन देयर शुड नॉट बी लॉस ऑफ एनी काइनेटिक एनर्जी, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी. तो वॉट एवर द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल, मान लो मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से उसको थ्रो किया और कोलाइड किया, तो वही स्पीड से वापस आएगा. लेकिन वापस जब आएगा तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब क्या हुआ? नेगेटिव. तो लेट अस प्रूव दिस मैथमेटिकली. अभी इसको हमको मैथमेटिकली प्रूव करना है, ओके, बाय यूजिंग द फॉर्मूला. So very interesting, just see. Now when the second particle is massive, right, m1 less than m2 and which is at rest, so from this equation v1 can be written as v1 is equal to, अभी देखो बच्चों यहाँ पे m1 इज वेरी स्मॉल लेकिन m2 मैसिव है, तो माइनस m2 डिवाइड बाय m1 निग्लिजिबल है अपॉन दिस m2 मल्टीप्लाइड बाय u1 प्लस, अभी ये u2 लेकिन जीरो है, सेकेंड बॉडी विच इज एट रेस्ट, तो उसका वेलोसिटी क्या, इनिशियल जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो, राइट. सो दिस विल बी माइनस u1 आ गया. तो व्हाट वी कैन राइट हियर, v1 इज इक्वल टू माइनस u1. सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1 when it collide on the wall, right, when it collide on the wall, it come back with the same speed. जो स्पीड से मैंने बॉल को कोलाइड किया दीवार पे, वही स्पीड से वापस आ रहा है. दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1. ये कब पॉसिबल है? ये कंडीशन में, इफ m1 इज वेरी स्मॉलर देन m2 एंड द m2 विच इज एट रेस्ट. अभी व्हाट यू थिंक अबाउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी? ये जो दीवार है उसका वेलोसिटी क्या होगा वो निकालना है.
थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप? What could be the prediction of the body which is at rest earlier and that is a heavy. ये दीवार है, m2 लिया मैंने उसको, दीवार को क्या लिया मैंने, m2 लिया, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0. बॉल जब उसको टकराएगा, what is the velocity of this ball? What do you predict? Any guesses? Yes, it is 0. Let us prove mathematically. अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि 0 आता है कि नहीं, राइट. So final velocity of wall v2 will be put here. यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे m2 लार्जर है, m1 निग्लिजिबल है, तो m2 अपॉन m2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे u2 क्या है, 0 है, इंटू 0 प्लस यहाँ पे 2m1 अपॉन सॉरी m1 निग्लिजिबल, लेकिन यहाँ पे भी, यहाँ पे m1 निग्लिजिबल है, राइट. तो ये 0 हो जाएगा, m1 इज निग्लिजिबल, सो 0 टाइम्स u1. सी यहाँ पे m1 निग्लिजिबल मतलब आपको 0 कंसीडर करना है मास कंपेयर टू द वॉल, द मास ऑफ द बॉल कोलाइडिंग विद दिस वॉल, तो इसका मास कंपेयर टू दिस वॉल टू बी टेकन एज 0. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा, 0 टू u1. ओके, सो दिस विल बी 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0. So that is V2 is equal to 0. The second body which was at rest remains at rest. वो कहीं हिलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. कोई दीवार को अगर कोई टू व्हीलर टकरा गई पार्किंग करते समय, राइट, होता है कभी कभी, तो वो जो दीवार